ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ مرکز کی 5 رکنی ٹیم پہنچی حیدرآباد، ریاست کا 2 روزہ دورہ کر کے سیلاب کی تباہ کاریوں پر پیش کریں گی رپورٹ۔ مغربی بنگال کی ترقی کے لیے مسلسل کی جا رہی ہے کوشش، وزیر اعظم کا بیان۔ 30 لاکھ افراد کو مکانات اور 90 لاکھ افراد کو دیے گئے ہیں گیس کنیکشن۔ کووڈ ویکسین کے آنے کے بعد سبھی شہریوں کو لگائے جائیں گے مفت ٹیکے، بہار اسمبلی انتخابات کے تحت بی جے پی نے جاری کیا مینیفیسٹو۔ INS کورٹی ہندوستانی بحریے میں شامل، 90% دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے آبدوز۔ اور ملک کی معیشت میں دوبارہ آ رہی ہے بہتری، RBI گورنر کا تاثر، کووڈ بحران سے نمٹنے کے لیے مرکز نے اپنایا ہے معاشی توسیع کا راستہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ جوائنٹ سیکریٹری کی قیادت میں ایک 5 رکنی بین وزارتی ٹیم آج سے تلنگانہ کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہے، جہاں وہ بارش سے تباہ حال ریاست میں ہوئے نقصانات کا برسر موقع جائزہ لے گی۔ حیدرآباد میں گزشتہ 100 برس میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب بھاری بارش کی وجہ سے تباہ شدہ علاقوں میں راحت کاری کام جاری ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران وقفے سے مختلف علاقوں میں ہو رہی بارش کے سبب ایک طرف سرکاری حکام، دوسری طرف عوام پریشان حال ہے۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں بھاری بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ونپرتی ضلع میں سب سے زیادہ 6.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 5 سینٹی میٹر سے زائد بارش ہوئی۔ شہر کے 100 سے زائد علاقے زیر آب ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ وسطی خلیج بنگال میں ہوا کا دباؤ برقرار ہے اور طوفان کی شکل اختیار کرنے کے امکانات ہیں۔ طوفان 1.5 تا 7.6 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراتری تقریبات کے پیش نظر مغربی بنگال کے عوام سے ورچوئل کانفرنس کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت مغربی بنگال کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت غریبوں کے لیے 30 لاکھ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں اور وزیر اعظم کی اجولا یوجنا اسکیم کے تحت 90 لاکھ افراد کو مفت گیس کنیکشن دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم کے خطاب کو عوام تک پہنچانے کے لیے مغربی بنگال کے BJP قائدین کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ تو استھان، استھتی، परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों ग्राम बांग्ला और शहर बांग्ला के रंग और मां दुर्गा के नवरूप की झलक न दिखाई देती हो। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن نے بہار کے اسمبلی انتخابات کے دوران دارالحکومت پٹنہ میں انتخابی منشور جاری کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران ریاست میں کیے گئے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ NDA کے اقتدار میں آنے کے بعد بہار کی ترقی نمو 3 سے بڑھ کر 11.3% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گڈ گورننس اور بہتر قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہار کے عوام سیاسی طور پر متحرک ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی ترقی کے لیے کس سیاسی جماعت کا انتخاب کرنا ہے۔ نرملا سیتارمن نے آنے والے انتخابات میں نتیش کمار کے ہی دوبارہ چیف منسٹر بننے کی توقع ظاہر کی ہے۔ We fulfill our promise. संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं। ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 7 महीनों के कोविड-19 बहरान के बाद इस वक्त मुल्क की मईशत में सुधार आ रहा है। शक्तिकांत दास ने 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के सिंह की जानिब से लिखी गई वेटरन पॉलिसी मेकर्स नामी किताब का रस्म इजरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोविड बहरान से निमटने के लिए माशी तोसी का रास्ता अपना लिया है। तालीमी शोबे को कंज्यूमर एक्ट के दायरे में लाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज को इस कानून के दायरे में लाने के लिए दायर करदा अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी पर मुश्तमिल बेंच ने सैलम में वाक़े विनायक मिशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ दाखिल करदा अर्जी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दरखास्त में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी तलबा को फराहम की जाने वाली खिदमात में नाकाम रही और ये यूनिवर्सिटी बदनवानी की मुर्तकिब हो रही है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,838 कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे केसेस की मजमूई तादाद 77,06,946 हो गई है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर सेहत की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 79,415 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 68,74,518 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क भर में फिलहाल 7,15,812 एक्टिव केसेस हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता शब 8 बजे तक रियासत तेलंगाना में 1,456 नए मुस्बत मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ अब तक दर्ज केसेस की मजमूई तादाद 2,27,580 तक जा पहुंची है। महकमा सेहत व तबाबत ने आज सुबह एक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रियासत में 1,717 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसी तरह अब तक सेहतयाब होने वाले मुतासरीन की तादाद 2,06,105 हो गई है। फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज निर्वाणे प्रोजेक्ट 28 के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए आबदोज शिकन सिस्टम से लेस रडार की नज़र में न आने वाले जंगी जहाज कवरत्ती को आज विशाखापट्टनम के बहरी डॉक यार्ड में शामिल किया। रडार की नज़र में न आने वाला एक ताकतवर ASW जंगी जहाज कवरत्ती बहरिया की अपनी तंजीम डायरेक्टरेट ऑफ नावल डिज़ाइन ने हिंदुस्तान में ही इसका डिज़ाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स GRS कोलकाता ने इसे तामीर किया है और ये खुद मुख्तार होने में मुल्क बहरिया और GRSE के बढ़ती सलाहियतों को जाहिर करता है और इससे आत्मनिर्भर भारत की कौमी मकसद को फ़रोग़ हासिल होता है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल निर्वाणे ने कहा कि जहां जहां जदीद जंगें जीती जा सकती है वहां इंटीग्रेटेड कमांड्स कायम करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब एक ही मकाम पर तीनों फौजों को इकट्ठा करना है। जनरल निर्वाणे के मुताबिक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कमांड को एक जगह मुत्तहिद करने से हंगामी तौर पर हालात पर काबू पाने और राहतकारी कामों में बेहतर नताइज हासिल हो सके। निर्वाणे ने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के फराइज इसी सिमत हैं। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी कल शब हैदराबाद के एक खानगी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसे। इनकी उम्र 86 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फर्जंद और एक दुख्तर शामिल हैं। रेड्डी जो गुज़िश्ता माह को कोविड से मुस्बत पाए गए थे, सेहत की पेचीदगियों की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। वो इस इन्फेक्शन से रुबा सेहत हो गए थे, ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला नलगुंडा के देवरकुंडा के नेरी दोगम्मा गांव में जरी खानदान में पैदा होने वाले नरसिम्हा रेड्डी हुक्मरान जमात TRS के सीनियर लीडर थे। उन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर अपने सियासी सफर का आगाज किया था। वो तेलंगाना के पहले वज़ीर दाखिला थे। रेड्डी TRS के टिकट पर 2004 में मुशीराबाद हल्के से तीसरी मरतबा मुंतखब हुए थे और इस दौरान कल चीफ मिनिस्टर KCR ने हॉस्पिटल पहुंचकर नरसिम्हा रेड्डी के अफराद खानदान से इयादत की। मरकजी हुकूमत की कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम कोरोना और लॉकडाउन जैसे हालात में बेरोज़गार होने वाले मजदूरों को माश फराहम करने में अहम रोल अदा कर रही है। इस स्कीम के तहत भद्रादरी कुत्तागुड़म ज़िले में सैकड़ों गरीब खानदानों को राहत मिल रही है। ज़िले में ज़ामिन रोज़गार स्कीम के तहत 2,13,000 अफराद में जॉब कार्ड्स तकसीम किए गए हैं। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान रोज़ाना 1,13,500 अफराद को रोज़गार फराहम करते हुए रियासत में भद्रादरी कुत्तागुड़म ज़िला दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। ज़ामिन रोजगार स्कीम के तहत पले प्रगति विलेज पार्क की तामीर, शजरकारी, वाई कुंटा धामम, डंपिंग साइट, जमीनात की तरक्की, तालाबों में मिट्टी की निकासी, नालों की खुदवाई जैसे काम करवाए जा रहे हैं। కుదురుతుంది ఈ కరోనా వల్ల నుంచి పని లేదు. ఇప్పుడు 100 రోజు పని కల్పించారు. 100 రోజు పని మేము చేస్తున్నాము. 230 రూపాయలు
మాకు ఇస్తున్నారు. మా కుటుంబం అంతా మంచిగా ఆరోగ్యంలో మంచిగా ఈ పని కల్పించప్పటి నుంచి మంచిగా ఉన్నాము. ఇది మాకు ధన్యవాదాలు फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मरकज की 5 रुकनी टीम पहुंची हैदराबाद। रियासत का 2 रोजा दौरा करके सैलाब की तबाहकारियों पर पेश करेंगी रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए मुसलसल की जा रही है कोशिश। वज़ीर आज़म का बयान। 30 लाख अफराद को मकानात और 90 लाख अफराद को दिए गए हैं गैस कनेक्शन। कोविड वैक्सीन के आने के बाद सभी शहरियों को लगाए जाएंगे मुफ्त टीके। बिहार असेंबली इंतखाबात के तहत बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। INS कवरट्टी हिंदुस्तानी बहरिये में शामिल। 90% देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है आबदोस। और मुल्क की मईशत में दोबारा आ रही है बेहतरी। RBI गवर्नर का तासुर। कोविड बुहरान से निमटने के लिए मरकज ने अपनाया है माशी तौसी का रास्ता।